Hello and welcome to the class, right? So today we'll be starting an entirely new topic which is related to numbers only, and I hope you have gone through the previous concept to this particular concept that we are starting today, that is remainder basics, right? Because in the coaching of e-coaching, today's topic would be remainders with theorems, right? So ये concepts पढ़ने से पहले I think you should go through the video which is like remainder basics. वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है. After that you can go through this video, right? So again, welcome to the class. I hope you're ready with your notes, you're ready to attend the class, and let's start today. So remainders का मतलब तो हमें पता ही है, ठीक है? उससे रिलेटेड आज सबसे पहले एक चीज समझेंगे कि ये यूलर-स्टोइशंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है? जैसे नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यूलर-स्टोइशंट फंक्शन. Now what is यूलर-स्टोइशंट फंक्शन? अब पढ़ेंगे भी क्यों पढ़ेंगे वो शायद हमें और 2-3 पार्ट्स के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं उसे, ठीक है? Why it is important in the remainder concept, I'll teach you. ठीक है? First let's try to understand. Euler नाम सुना होगा. Euler is a very famous mathematician who has defined multiple theorems and as well as these kind of functions. ठीक है? उसको यूलर-स्टोइशंट फंक्शन नाम दे रखा है. And why it is important that we'll understand in the later stage. First we understand what is it, right? क्या कह रहा है? If n is a number, if n is a natural number, ठीक है? तो धीरे धीरे पढ़ते हैं. Such that n is equals to a power p, b power q, c power r and so on. Actually, where a, b, c are prime numbers. Then Euler-Stoichern function is given like this. ठीक है? वो तो ठीक है. Where phi of n is the number which is given like this, where phi of n is number of numbers less than and that prime to n or co-prime with n. ठीक है? हाँ, तो इसे पढ़ के कैसे फीलिंग आ रही है? कुछ ऐसा है ना? क्या कहना क्या चाहते हो सर? क्यों पढ़ रही है? एग्जैक्टली, ध्यान से देखे, ठीक है? तो इसका जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, तो मैं एग्जाम्पल लेके आपको साथ साथ में पूरा डेफिनेशन समझाता हूं, ठीक है? ध्यान से देखे बेटा. n is equals to 12, let's say कोई एक नंबर ले लिया हमने 12, डन. उसको सबसे पहले आप देखें हमने यहां क्या किया हुआ है, उसको प्राइम फैक्टराइज इज नाउ अ कॉमन वर्ड दैट यू शुड अंडरस्टैंड. उसको प्राइम फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर लिया, 2 power 2, 3 power 1, ठीक है? फेयर इनफ. वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर्स 2 and 3, एंड अगर कुछ आगे होता तो वो भी प्राइम होता, ठीक है? देन यूलर-स्टोइचर्न फंक्शन phi of n is given by this n, that is number itself, यानी कि कुछ ऐसा, बात समझना, ठीक है? So Euler-Stoichern function phi of n can be given like n, that is number itself, multiplied by 1 minus 1 upon a यानी कि जो एक प्राइम नंबर है आपका, ठीक है? So 1 minus 1 upon 2 into 1 minus 1 upon b, that is दूसरा प्राइम नंबर 3, ठीक है? into 1 minus 1 upon c, अगर तीसरा होता तो, लेकिन फिलहाल नहीं है, ठीक है? So let's keep it as it is. 12 into 1 minus 1 upon 2, 1 by 2, 1 minus 1 upon 3, 2 by 3, 3 2s are 6 into 2, 2 2s are 4, ठीक है? So phi of n तो हमें मिल गया, ठीक है? हमारा जो phi of n हमारे केस में आया वो आया 4. Now ये क्या है? What is phi of n? वो समझते हम लोग, ठीक है? phi of n तो 4 आ गया हमारा, exactly the way I found it. Number of numbers less than and prime to n. Okay, now 12 है हमारा नंबर, मतलब n का वैल्यू हमारा क्या है? 12. तो हमें ये जो है ना, ये आंकड़ा क्या है? 4 क्या दिखा रहा है? देयर विल बी, क्लियर समझे, देयर विल बी 4 such numbers, there will be 4 such numbers which will be less than 12, and co-prime with 12, ठीक है? ऐसे 4 नंबर्स होंगे पक्का जो 12 से छोटे होंगे और उसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा होगा 12 के साथ, दैट इज को-प्राइम का डेफिनेशन, ठीक है? तो और कुछ समझते हैं इसके बारे में, ठीक है? कुछ ऐसा. So as per function defined, there must be 4 such numbers which are less than 12 and co-prime with 12. देखते हैं हम लोग, जैसे टोटल कितने नंबर है? एक से लेके 11, 12 से छोटे इतने नंबर है. इसमें से
विदाउट इवन चेकिंग यू कैन से डेफिनेटली देयर विल बी 4 सच नंबर्स जो को प्राइम होंगे 12 से, ये वो है 4. यू सी दिस 1 and 12 co-prime 5, 7, 11. Each of them, you cannot take anything out. 1, 12, you can take 1 out. That's it. 5, 12, you can take nothing out. 7, 12, you can take 1 out or 1 out here as well. And 11, 12, you can take 1 out. So apart from 1 is, let's don't consider 1 as a factor. If then 1 और 12 में से कुछ कॉमन नहीं निकला. 5, 12, 7, 12, 11, 12. So all these numbers 1, 5, 7, 11 are co-prime with n. ये हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आप समझे. This is my cross-checking process. What we are doing here is let's cross-check. You see, we are just cross-checking it. ठीक है. So हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी. हमें किसने बताया? यूलर भैया के टॉयसेंट फंक्शन ने बताया. बोले आप इस तरह से मेरा एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं फाई ऑफ एन, वो आप ढूंढे, यू विल अंडरस्टैंड कि वो नंबर से छोटे कितने को प्राइम नंबर्स उसके पास होंगे. मेरे हिसाब से इतना मेरा देखने के बाद, डेफिनेशन और नंबर का ये कैलकुलेशन करने के बाद, यू हैव अंडरस्टूड इट एटलीस्ट 50 to 70%, राइट. सर स्टिल थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल करेंगे, ज्यादा समझ आएगा. इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस, यू कैन रिवाइज द वीडियो एंड गो थ्रू इट अगेन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. So let's say now let's take an example of 30. ठीक है, अब खुद ट्राई करें, आपके पास ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है. यू टेल मी हाउ मेनी एंड विच आर द नंबर्स फॉर द जस्ट प्रैक्टिस सेक आई एम टेलिंग यू. ठीक है, विच आर दोस नंबर्स एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर लेस देन 30 एंड प्राइम विथ 30. आप बताएं मुझे. ठीक है, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. सो n is equals to 30, सर हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, 30 कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड. फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन. ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है. ठीक है, सो 30 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 पावर 1 पावर 1 पावर 1. हो गया सर प्राइम फैक्टराइज. परफेक्ट. तो इसका मैं फाई ऑफ n कैसे ढूंढ सकता हूं? दैट इज यूलर्स टॉयसेंट फंक्शन. n into 1 minus 1 upon a, 1 minus 1 upon b, 1 minus 1 upon c. This is the way we need to find. Fair enough. Equal to n क्या है हमारा? 30. 30 into 1 minus 1 upon 2, ये वाला प्राइम नंबर लिया. 1 minus 1 upon 3, this prime number, and 1 minus 1 upon 5, this prime number. Now further, if I simplify this, it is like 30 into 1 by 2 into 2 by 3 into 4 by 5. 5 3s are 15, 2s are 30, 30, 30, cancel, 4 2s are 8. How many numbers do we have? 8. और टेक्निकली स्पीकिंग यूलर्स टॉयसेंट फंक्शन का आंसर क्या आया? 8. इसका मतलब मैं देखे बिना कह सकता हूं कि 30 से छोटे 8 नंबर वैसे होंगे. 8 numbers will be there such that those numbers are co-prime with 30. We can definitely say this. But let's cross check. Initial phase है ना हमारा, समझने के लिए हम इसे cross check भी करते हैं. ठीक है, so yes, we got 8. Now let's cross check. 30 से छोटे कितने नंबर होंगे? 29 तक. And how many such numbers are there? You see, 1, 7, 11, 13, 17, 19, 29 and 23. These are only 8 numbers which are prime, co-prime with 30. Which are co-prime with 30. Sir, हाँ बिल्कुल. कैसे? 2 और 30 में से कुछ कॉमन निकलेगा? हाँ, रैंडमली कोई भी नंबर पिक करो. 25 30 में से कुछ कॉमन निकलेगा? हाँ सर, 5 निकलेगा. That means this cannot be. रैंडमली कोई भी पिक करता हूं. 15, सर 15 और 30 में से खुद बेचारा 15 ही कॉमन निकल जाएगा. फेयर इनफ. रैंडमली इफ आई पिक 21 एंड 30 में से कुछ कॉमन निकलेगा? हाँ सर, 3 कॉमन निकलेगा. यू सी, सो देयर आर ओनली 8 दीज सच नंबर्स व्हिच आर को-प्राइम विद n. हाँ सर समझ आ गया. ऐसा होगा ना? हाँ सर समझ आ गया. अब पक्का समझ आ गया, कोई भी नंबर दे दो. ठीक है. Now actually this is just cross checking. This process you don't have to do every time, right? This is just we are cross checking to understand Euler's twoisant function. ये twoisant function क्या है वो हम समझने के लिए ये कर रहा है. Like there should be a question in your mind. हाँ सर समझ आ गया. तो क्या? I mean how is this useful, right? तो यूलर ने क्या किया? एक twoisant function define किया क्योंकि उसकी जरूरत थी to understand the concept of remainders as well.
और वो एक रिमाइंडर से रिलेटेड वो एक थ्योरम देगा, दैट विल बी अवर नेक्स्ट पार्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड यूलर-टॉयसन फंक्शन, और वो हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. तो यूलर ने उसी टॉयसन फंक्शन से रिलेटेड कौन सा थ्योरम दिया? उसने बोला कि इफ p is some other natural number which is prime to n, then remainder when p raised to phi of n is divided by n is 1. Remainder when p raised to phi of n is divided by n is 1. फिर भी सर इतना समझ नहीं आया क्या कहना चाहता है? एग्जाम्पल लेंगे, बड़ा समझ आ जाएगा. ध्यान से देखो, मैं फिर से n का वैल्यू 12 ले लेता हूं. फेयर इनफ. phi of n 4 है, हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है अभी जस्ट बिफोर 2 पार्ट्स आई गेस. ठीक है, अब मैं रैंडमली कोई नंबर p ले रहा हूं 5. डन. ठीक है, अब ये थ्योरम क्या बोल रहा है, बात समझना. इफ p is some other natural number which is prime to n, 12 and 5 are they co-prime? Prime to n है. Are they co-prime? Yes. Done. 5 12 में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. Then remainder when p raised to 5 of n, p is 5. So remainder when p 5 raised to phi of n, phi of n है 4 is divided by 12, तब पक्का क्या आएगा? 1. आप ये डिवाइड किए बिना, एक्चुअली मैंने जानबूझ के ये छोटा नंबर लिया है ताकि हम इसे क्रॉस चेक कर पाए, बट दिस इज द थ्योरम. वैसे 5 raised to 4 होगा क्या? 625 है ना. 5 स्क्वायर का स्क्वायर है ये, 25 का स्क्वायर, दैट इज 625. 625 व्हेन डिवाइडेड बाय 12, लेट्स से हम डिवाइड कर ही लेते हैं. 12 5s are 60, 2 5, 12 2s are 24, 0 1. You see? लेकिन ये तो यूलर भैया ने थ्योरम से ही बोल दिया कि जब आप कोई भी एक ऐसा नंबर ले रहे हो, रेंडमली कोई भी नंबर जो को प्राइम है n के साथ, ठीक है, उसके पावर में आप उसका टॉयसन फंक्शन डाल दो n का, दैट इज 4. इन आवर केस 12 का phi of n is 4, और उसे आप n से ही डिवाइड करें 12, तो आपका पक्का रिमाइंडर 1 आएगा. हाँ, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स ट्राई किए होंगे उसने, और भैया ने मेहनत किया और हमें ऐसा अच्छा सा थ्योरम दे दिया. ठीक है, सो यस, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू हियर. सो दिस इज द थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. अब आप समझे इसमें phi of n क्यों इंपॉर्टेंट था. पावर में क्या होना चाहिए? phi of n मतलब पावर में होना चाहिए उसका टॉयसन फंक्शन. पावर में क्या होना चाहिए? उसका टॉयसन फंक्शन. ठीक है, इसलिए दैट फंक्शन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, so let's go to the next part. Now similar question I have given you, you try by yourself. Can you connect this with Euler's theorem? Yes or no? And if yes, try by yourself, pause the video. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, what will be the remainder when 23 raised to 8 divided by 30? सबसे पहले तो ये समझ लो, क्या ये दोनों को प्राइम है? You see my approach. पहला पॉइंट मैंने क्या देखा? Are these two को प्राइम? Yes. आगे बढ़ सकते हैं, यूलर भैया हमारा हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, डन. नाउ एक पहली चीज हो गई. ठीक है, 30 इज अवर नंबर बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इट बाय 30, सो दिस n कैन बी 30. अच्छा, 30 का यूलर्स टॉयसन फंक्शन phi of n अभी हमने ढूंढा था, कितना आया था? 8. देयर विल बी 8 सच नंबर्स. ठीक है, क्या वही उसके पावर में है? अरे वाह, काम हो गया ये तो हमारा. यस, 23 randomly selected number which is prime with n, उसके पावर में phi of n divided by 30. सर सोचना ही नहीं है, पक्का रिमाइंडर would be 1. You can try by yourself in calculator as well. पक्का रिमाइंडर would be 1. ठीक है, so this is the concept of Euler's theorem. Remainder would be 1. So application of Euler's Toyson function and applications of Euler's theorem directly like this I have understood, or I have explained you, we all have understood that. I hope yes, right? If not, you can go through it again and you will understand it better for sure, right? चलिए, इसका एक स्टेप और फर्दर चलते हैं हम लोग. Now वो क्या कहता है that let's say Euler और Fermat ने दोनों ने मिलकर एक थ्योरम दिया. ठीक है, this can be pronounced as Fermat, Fermat, many things. हम नॉर्मल रखते हैं फार्मा. ठीक है,
सो फार्मा ने क्या बोला, यूलर और फार्मा ने साथ में मिलकर कुछ ऐसा बोला कि इफ वी स्पेसिफिकली टेक एन एज प्राइम नंबर, ठीक है, वैसे हमने हमारा एन सबसे पहले क्या लिया था सर, हमने ट्राई किया एन, फिर हमने एन ट्राई किया 30। आप देखें इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, सो इट वाज फर्दर प्राइम फैक्टराइज्ड like 2 raised to 2 into 3 raised to 1 or 2 raised to 1 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1. So these are the two examples that we took which weren't prime. लेकिन जब उसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया उसके बाद हमने आगे उसका प्रोसेस किया, ठीक है, फंक्शन ढूंढने के लिए। बट व्हाट इफ वी स्पेसिफिकली टेक n ओनली अ प्राइम नंबर, मान लो मैंने n का वैल्यू ही सीधा लेट्स से 13 ले लिया। If I take n is equals to 13, now this can be prime factorized as 13 power 1. हाँ, सिंपल हो गया ना। फायदा क्या होता है मैं दिखाता हूं। अच्छा मुझे बताओ इसका phi of n क्या आएगा? When you define phi of n, हमारा रूल क्या है? n into 1 minus 1 upon a। क्यों लिखा मैंने ये बता रहा हूं। हमारा phi of n का फॉर्मूला क्या है? n into 1 minus 1 upon a। What is a? The prime number, 13 itself. So 13 into 1 minus 1 upon 13. So 13 into 13 minus 1, that is 12 by 13. 13 cancel, क्या आया? 12. यार ये तो हर बार ऐसा होगा ना। If I would have taken 13 की जगह मैंने 17 लिया होता, अगर मैंने n का वैल्यू 17 लिया होता, ध्यान से देखे तो क्या आता ये 17 पावर 1। फिर मेरा फंक्शन ऑफ n, सॉरी phi of n, टॉयशन फंक्शन क्या आता? 17 into 1 minus 1 upon 17, that is 17 into 16 upon 17, 17 cancelled, क्या आया आंसर? 16। ये तो हर बार ऐसा होगा। इसका मतलब अगर n प्राइम है, बात समझना, अगर n प्राइम है तो उसका टॉयशन फंक्शन जो आप ढूंढेंगे वो हमेशा n-1 आएगा, हाँ या ना? यस और नो? हाँ, तो ये यूलर और फार्मा ने मिलकर बताया ये हमें, ठीक है। क्या बोला उसने कि यूलर देन इट कैन बी रिटन एज n raised to n+1, ठीक है। देन योर टॉयशन फंक्शन वुड ऑलवेज रिजल्ट इनटू n-1, मतलब जो नंबर लिया आपने उससे एक कम, सीधी बात है। यस, तो आपका जो थ्योरम है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझे। पहले थ्योरम क्या बोला यूलर भैया ने, थ्योरम में क्या बोला? p raised to phi of n upon n. In this case, if I try to find remainder, it will always be 1. यूलर भैया ने ऐसा बोला। अब ये phi of n उस वक्त ढूंढने जाना पड़ता है। ये तो हमने 12 और 30 के लिए डिफाइन कर लिया था, 4 and 8 ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया था। So it become easy for us to put phi of n. But what if we don't know phi of n? First we need to find phi of n, right? But that won't be the case if our n is prime. Why so? तो हमारा phi of n डिफाइन है n-1, तो ये phi of n की जगह क्या आ जाएगा? n-1। वही दिखा देखो। यूलर फॉर्मेट्स थ्योरम क्या है? इफ p is some natural number which is prime to n, वो तो ऑलरेडी यूलर ने भी बोला था, then remainder when p raised to n-1 upon n is 1। अब सीधा कहीं जगह पे ये थ्योरम समझाते हैं, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हाट इज यूलर्स टॉयशन फंक्शन, व्हाई यूलर टोल्ड सो, एंड देन व्हाई यूलर एंड फार्मा गॉट टुगेदर एंड डिराइव्ड दिस थ्योरम, एंड हाउ दिस थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में। सो इस थ्योरम से रिलेटेड मैं आपसे बात करता हूं। आपने ये समझ लिया? हाँ, अब सीधा सीधा आपके सामने एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करूंगा, पहला पॉइंट में, क्या 15 and 19 को प्राइम है? पहला मेरा आंसर। अच्छा ये मैं करूंगा भी क्यों, उससे आगे मैं जाता हूं। जैसे प्रीफेज होता है ना किसी बुक का, वैसे रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर के लिए अभी तक हमने एक ही थ्योरम पढ़ा है, यूलर्स फार्मा थ्योरम या यूलर्स थ्योरम या यूलर्स टॉयशन फंक्शन, वही पढ़ा ना हमने, ठीक है। तो मैं जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन देखूंगा, आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दिस फिट्स with Euler's format's initial conditions, yes or no, then I'll go to apply that. 15, 19 co-prime, yes. क्या 19 प्राइम है? Is 19 प्राइम?
यस, अगर इतना है ना तो मैं इसे भी नहीं देखूंगा, फिर मैं सीधा सीधा यूलर थ्योरम क्या कहता है, इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज इफ आई डिवाइड 19 बाय एनी नंबर n पावर 18, इससे एक कम, इन दैट केस रिमाइंडर ऑलवेज बी 1. I just need to be sure that n and 19 should be co-prime. Shouldn't be anything common coming out of them, right? n and 19. यहां 15 दिया है n की जगह. हमारा n क्या है? Logically thinking, our n is 15. कुछ देखने के लायक ही चीज नहीं है. Definitely remainder will be 1. Am I clear? Yes or no? Do you feel that? I know that I cannot hear you, but I hope you are clear, right? ठीक है? So I have explained you thoroughly Euler's theorem, Poisson function and Lewis-Fermat theorem. ठीक है? And we have taken an example as well. इससे और ज्यादा ढंग से समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा बेटा, डोंट वरी, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आई एम सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट ये फार्मा भैया जो है ना, ये फार्मा भैया का एक बड़ा थ्योरी है अच्छा सा, ठीक है? और मैंने भी कुछ स्टोरी वोरी पढ़ी है, शायद ज्यादा ही मिर्च मसाला होगा उसमें, लेकिन वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ फार्मा. ये भैया बहुत स्मार्ट भैया थे, यू नो. अच्छा, उसने क्या किया, उसने पाइथागोरस का लॉ देखा. पाइथागोरस ने क्या बोला था वैसे, पाइथागोरस ने कुछ ऐसा बोला था that A, B and C, if this is 90 degree, then we can have A square plus B square is equals to C square, है ना? ठीक है, डन. अच्छा, फर्मा ने क्या बोला कि यार स्क्वायर के लिए क्यों डिफाइन करते हो, क्यूब, पावर 4, पावर 5, ट्राइंगल को छोड़ दो ना. Do we have solution for this equation? A square plus B square is equals to C square. ऐसी कोई तीन वैल्यूज हो सकती है A, B, C की? ऑफ कोर्स हो सकती है सर. 3 square plus 4 square equal to 5 square. 3, 4, 5 है ना? 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25. मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली तीन वैल्यूज है 3, 4 and 5. यस, हो सकती है. मतलब सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन एग्जिस्ट. ठीक. फार्मा ने क्या बोला कि अगर आप n ग्रेटर देन 2 लेते हो, मतलब कि पावर जो है वो आप 2 से बड़ा कर देते हो, a पावर n प्लस b पावर n इक्वल टू c पावर n, जिसमें क्या है, n इज ग्रेटर देन 2, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब, और a पावर 4 b पावर 4 इज इक्वल टू c पावर 4, और एंड सो ऑन. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. You won't find a single solution of triplets ABC which will satisfy this equation if your n is greater than 2. ऐसा फार्मा ने बोल दिया. अब फार्मा भैया का कैसा था कि वो नॉर्मली ऐसे, जो मैंने मिर्च मसाला डाले हुई स्टोरी सुनी है उसमें ऐसा था, he used to give theorems and then slowly and gradually he will provide उसका proof. बोले हाँ ठीक है, प्रूफ देते हैं ना, ये थ्योरम है, देख लो, मैं प्रूफ दे रहा हूं. उस वक्त ऐसा चल रहा था ना, वी आर टॉकिंग अबाउट 1700s और 1800s, तो उस वक्त ऐसा चल रहा था, मैथमेटिशियन सब मिलते थे सालाना या नो ईयरली और क्वार्टरली, आई डोंट नो. सो उस वक्त सब डिस्कस करते थे, बोले तू कौन सा थ्योरम लाया, ऐसे. सो फार्मा गया, बोले मैं ये थ्योरम लाया. ठीक है, अब हुआ ये, बोले प्रूफ मैं दूंगा. उसने बोला कि सर दूंगा कभी प्रूफ, टाइम मिलेगा तो. ठीक है. अब भाई नॉर्मली वो ऐसा होता था कि थ्योरम देके प्रूफ थोड़े टाइम में दे देता था, लेकिन ये थ्योरम देके भैया भगवान को प्यारे हो गए. इसका मतलब क्या हुआ कि इस थ्योरम का नाम पता है क्या हो गया, फार्मास लास्ट थ्योरम, और बड़ा फेमस हो गया. इस पे बुक्स है, बुक्स लिखी गई है, दिस इज टाइटल ऑफ दैट बुक. ठीक है, फार्मास लास्ट थ्योरम. और ये बुक क्यों बन गई, आई टेल यू. इस थ्योरम का सॉल्यूशन उस टाइम के साइंटिस्ट तो क्या, उससे 150-200 साल तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया. सबको पता है कि सही है, लेकिन प्रूफ कहां है. फार्मा भैया तो चले गए, प्रूफ कहां है. इसलिए ये हिस्ट्री में बड़ा फेमस हो गया, फार्मास लास्ट थ्योरम. ठीक है, दिस इज आउट ऑफ ट्रैक फ्रॉम आवर सब्जेक्ट, लेकिन फार्मा भैया आया ना, इसलिए उनकी याद में हमने ये स्टोरी सुना.
ठीक है। फाइनली कुछ सालों पहले फार्मा का एक ये जो थ्योरम का किसी ने प्रूफ दिया भी है, few scientists accept, few mathematicians accept, few not, still the controversy goes on। लेकिन फाइनली किसी ने किया। देखने लायक बात ये थी कि फार्मा भैया कितने स्मार्ट हो गए वो, सोचो थ्योरम तो दे दिया, बोले प्रूफ दूंगा और चले गए। अब पूरी दुनिया झगड़ने लगी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस पे रिवॉर्ड था कि कोई इसका प्रूफ देगा तो ये मिलेगा। बड़ी लंबी लंबी स्टोरी है, जस्ट फन मैथमेटिक्स फैक्ट लाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको। थिंक कैन यू रिलेट दिस विथ यूलर्स फार्मा थ्योरम? इफ यस, व्हाट विल बी द आंसर? पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो मैं तो यही चीज देखूंगा सबसे पहला, इज 17 प्राइम? यस। इज 17 and 25 को प्राइम? सेकेंड क्वेश्चन, यस। अब इतना होने के बाद मैं फार्मा का थ्योरम लगा सकता हूं, बस मैं ये सोचूंगा। इसका मतलब मैं 25 के पावर में जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उससे एक कम, यानी 17 से एक कम 16, अगर ये मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलेगा 1। ये मुझे पता है यार, वही तो क्वेश्चन है। सीधा सीधा यूलर-फॉर्मेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है यहां पे, और यही क्वेश्चन है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहीं एग्जाम्स में। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, डन। सीधा सीधा ऑब्जर्व दैट 17 इज प्राइम, यू सी। सेकंड, ऑब्जर्व दैट 17 and 25 आर को प्राइम, करेक्ट। नाउ वी कैन लुक फॉर Fermat's थ्योरम, बट फॉर दैट व्हाट वी नीड इनटू पावर एज n-1, यानी कि 17 - 1 16। अरे भाई वही है, वही तो है, बात खत्म हो गई हमारा। सो रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। पक्का? डन। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा मिर्च मसाला डाला हुआ क्वेश्चन देखते हैं।